This is All India Radio. In the program Spotlight, now we bring you Health Ministry's press conference on actions taken, preparedness and updates on COVID-19. In today's press briefing on actions taken, preparedness and COVID-19 updates, Union Health Ministry said the cumulative positivity rate of COVID-19 infection in the country is 5.27% and the rate is declining. Briefing media in New Delhi, Health Secretary Rajesh Bhushan said the active cases in the country are less than 1.40 lakh and the average daily deaths in the previous 1 week have also decreased to 93. He said over 87 lakh COVID-19 vaccine doses have been administered in India so far. हमने अब तक 87,40,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। इनमें से 85,70,000 पहली डोज हैं, 1,70,000 से ज़्यादा दूसरी डोज हैं। तो ये नंबर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में जो एक्टिव केसेस हैं कोविड के वो 1,40,000 से भी कम हो गए हैं और घट रहे हैं। एवरेज डेली डेथ पिछले एक सप्ताह में जो रिपोर्ट हुई वो भी घटी हैं 93 और क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट देश में लगातार घट रहा है 5.27% है। केस पर मिलियन 7,900 हैं। जो एक्टिव केसेस हैं हमने बताया कि 1,40,000 से भी कम हो गए हैं, 1,36,000 हैं और ये कुल केसेस के 1.25% हैं। Health Secretary said, in the last 7 days, India has recorded 56 new cases per million population and 0.5 new deaths per million population, which is significantly lower than other countries. The range of daily active cases in the last 15 days has varied from 12,900 per day to 9,000 per day. हमने 20 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए हैं। टेस्ट पर मिलियन 1,50,000 से ज्यादा हैं। पॉजिटिविटी 5.27% ओवरऑल है और 1.65% है अगर हम पिछले एक सप्ताह की पॉजिटिविटी को देखें। सो इट इज येट टू कम डाउन बिलो 5 बट इट इज प्रोग्रेसिवली कमिंग डाउन। और अगर नए केसेस के आंकड़ों को देखें प्रति मिलियन पॉपुलेशन तो हमारे देश में 56 नए मामले प्रति मिलियन पॉपुलेशन पिछले सप्ताह में रिपोर्ट हो रहे हैं। Addressing the press conference, Director General of Indian Council of Medical Research, Dr. Balram Bhargava said, ICMR-NIV is attempting to isolate and culture the South African variant of SARS-CoV-2. He said, in India, the South African strain of COVID-19 has been detected in 4 returnees from South Africa. All travelers and their contacts are tested and quarantined. In terms of the South Africa variant, this is also known as 20H/501Y.V2 or the B lineage, B.1.351. This emerged independently in South Africa and was first reported in South Africa in mid-December 2020. Now this has multiple mutation of the receptor binding domain of the spike protein. The earlier one was spike protein mutations. Here the receptor binding domain of the spike protein has these variations, and majority of the cases of South Africa today are due to this variant strain, and this has spread to 44 countries. In India, the strain has been detected in 4 South Africa returnees in January 2021, 1 from Angola, 1 from Tanzania and 2 from South Africa. All travelers and contacts have been tested and quarantined, and ICMR National Institute of Virology in Pune is attempting to isolate and culture the South African variant strain from the samples of these 4 individual returnees. The ICMR-DG said a case of Brazil variant of SARS-CoV-2 was detected in the first week of this month. He said the virus strain was successfully isolated and cultured at ICMR-NIV Pune. He added South African and Brazilian variants are different from the UK variant. Now the Brazil variant of SARS-CoV-2, this emerged independently in Brazil in early January of this year, and it attributed to the large V-spike of cases that occurred in Brazil, particularly in Manaus, and mutations in the receptor binding domain of the spike protein are there, and this has increased transmissibility like the UK variant as well as the South African variant, and has spread to 15 countries. A single case of variant strain detected in Brazil returnee in the first week of February 21. The traveler and contacts have been tested and quarantined. Virus strain
has been successfully isolated and cultured at ICMR NIV Pune, and experiments to assess vaccine efficacy on this strain are underway. Member Health in Niti Aayog Dr. V.K. Paul said 24 countries have been sent COVID-19 vaccine from India so far. We must continue to embrace good practices which have saved us, and we already have UK variant in our country. Hopefully these variants will not cause catastrophic situation in the country. I think we can definitely draw huge satisfaction about the progress that has been made so far, and much of it is as per our plan. 87 lakh people have received one dose, and some of them have received more than one dose. Today the picture is overall under control, and our progress for vaccination is progressing very well. 24 countries have been sent vaccine from the Indian soil. Later in the press briefing, the officials answered the queries of media persons. Now let's listen to that. ये जो 4 केसेस साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स के आए हैं, ये कहाँ से हैं सर विद इन द कंट्री? You would recall that to protect the privacy of the individuals, even for UK variant, we had not revealed either the name of people who had tested positive for UK variant or their location. लेकिन हमने ये जानकारी आपको जरूर दी है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग कहाँ हुई, NIV पुणे में हुई। क्या ऐसे व्यक्तियों को हमने क्वारंटाइन किया? हाँ, हमने क्वारंटाइन किया। क्या ऐसे व्यक्तियों के क्लोज कॉन्टैक्ट हमने ट्रेस और ट्रैक किए? हाँ, हमने कर लिए। क्या उनके भी टेस्ट हो गए? जी हाँ, वो भी हो गए। क्या उनमें से कोई इस वेरिएंट के लिए पॉजिटिव पाए गए कि नहीं? यानी 4 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के मामलों में और 1 ब्राजीलियन वेरिएंट के मामले में, तो उसका उत्तर नहीं में है। सर, जो 5 पोल बाउंड स्टेट में इलेक्टोरल ऑफिशियल्स और वर्कर्स को वैक्सीनेशन के लिए आपने लिखा है, उसका काम कितना आगे गया है और इतनी कम समय में वो काम कितना कंप्लीट हो पाएगा? एक तो हमारा ये मानना है कि समय पर्याप्त है। दूसरा, हम आपके संज्ञान में ये तथ्य लाना चाहते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग ने इन राज्यों में निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के क्रम में ये तथ्य पाया था कि क्योंकि पूर्व के जो निर्वाचन हुए उनमें कुछ मामले आए थे कोविड पॉजिटिव होने के, तो प्रोएक्टिव तरीके से यदि कार्य किया जाए और जो फ्रंट लाइंस पर निर्वाचन का संचालन करते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए कोविड इम्यूनाइजेशन के माध्यम से, तो संभवतः वैसे मामले नहीं आएंगे जैसे कि पूर्व के निर्वाचनों में आए। तो उस इनपुट के आधार पर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारत के निर्वाचन आयोग ने मिलकर इस दिशा में कदम उठाया है, और हम आशा करते हैं कि जो समय हमारे पास उपलब्ध है उसके बीच हम सभी आवश्यक कार्रवाइयां कर पाएंगे। So possible to put a finger on what wrong are Maharashtra and Kerala doing? Also there are reports of possible restrictions in parts of Maharashtra. Is that necessary? You see, I can tell you one point, but we have men of science here who would supplement. The one point that the central teams have found that over a period of time, both in Maharashtra as well as in Kerala, the percentage of RT-PCR tests have gone down, and there is a need to substantially increase RT-PCR tests. So that is something that we have shared with both the states. Secondly, हमें याद रखना चाहिए कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं पेंडेमिक कंट्रोल करने के, उनमें कोताही आएगी, कहीं ना कहीं तो नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये स्ट्रिक्टनेस टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जब लगे भी कि सिचुएशन ठीक है, उसके बावजूद भी कम नहीं होनी चाहिए। द फैक्ट रिमेन्स कि काफी इंटेंसिटी की इन्फेक्शन होने के बावजूद भी संक्रमण चल सकता है। ठीक हो गए तो कोई गारंटी नहीं है कि कल दोबारा शुरू नहीं हो सकता है। अभी हम उस पॉइंट से बहुत दूर हैं, और टेस्टिंग कुछ बढ़ने की भी गुंजाइश है दोनों स्टेट में, वो भी होनी चाहिए। और जो हमारे एफर्ट्स हैं कंटेनमेंट के, क्वारंटाइन के, सर्वेलेंस के, वो भी इंटेंसिफाई होने चाहिए। और ये भी लग रहा है कि छोटी जो जगह हैं, छोटे शहर जो हैं कंपैरेटिवली, वहां भी संक्रमण की इंटेंसिटी किसी हद तक बढ़ जाती है। ये भी सामने आ रहा है। इस बीमारी के बारे में, इस महामारी के बारे में बहुत सारे तथ्य अभी धीरे धीरे सामने आएंगे। पूरी नॉलेज अभी सामने नहीं है, अनएक्सपेक्टेड बातें भी दिखने में आती हैं। इसलिए जो विजिल है, मेहनत है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
सर, जिस तरह से आपने बताया था कि यूके वेरिएंट जो है वो सुपर स्प्रेडर जरूर है, लेकिन वो सीरियसनेस ऑफ द केस या फेटेलिटी में कन्वर्ट नहीं करता, उसी तरह से जो ब्राजीलियन और ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, इसका भी बता दीजिए। और क्या गवर्नमेंट को लगता है कहीं जिस तरह से यूके वेरिएंट के लिए फ्लाइट्स रुकी थी, इनके लिए भी रोकने की जरूरत है? पहला तो ये पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस है यूके वेरिएंट से। यूके वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन था, इसमें रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो है इन दोनों में प्रॉब्लम है। तो वो रिसेप्टर में ACE2 रिसेप्टर जो लंग्स में होते हैं उसमें ये आसानी से बाइंड कर जाता है। ये इस वायरस को थोड़ी सी क्षमता देता है कि वो आसानी से बाइंड कर जाए लंग्स में। ये ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट में देखा गया है। फ्लाइट्स के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो यूके वेरिएंट का अनुभव है उसने हमें ये सिखाया कि जितने भी लोग यूके से आए उन सारे फ्लाइट्स में डिसएम्बार्केशन के बाद हमने 100% RT-PCR टेस्ट करवाए, अभी भी करवा रहे हैं, और उसमें जो पॉजिटिव पाए गए उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। तो आई थिंक ये जो स्ट्रैटेजी है इसका काफी असर हुआ और इसके अच्छे परिणाम निकले, और संभवतः इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी हम साउथ अफ्रीका और ब्राजील के फ्लाइट्स के लिए अपनाएंगे। यहाँ केवल एक अंतर ये है कि जैसे यूके से डायरेक्ट फ्लाइट्स आती हैं, वैसी डायरेक्ट फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका या ब्राजील से हमारे देश में नहीं आती हैं। अधिकांश ट्रैफिक अन्य सेक्टर से रूट होता है, फॉर एग्जाम्पल द गल्फ सेक्टर। तो इनमें किस प्रकार के कदम उठाए जाने हैं, उसके लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय से संपर्क में है और हम शीघ्र ही आपसे जानकारी साझा करेंगे। एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। पहली बात है कि हम आपको हर बार सूचित करते हैं कि वे वैक्सीन सेफ हैं, और उसके ऊपर मैं चाहता था कि अपडेटेड फिगर भी दोबारा बताई जाए एडवर्स इफेक्ट की। तो अभी अगर कुल मिला के हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट, तो अब ये 0.05%, पहले हम इससे थोड़ी सी ऊपर ही बता रहे थे। 1 in 2000 में थोड़ा सा कोई मामूली सी कहीं दर्द होती है, मामूली सा बुखार आता है, तो एमिनेंटली सेफ है। और ये भ्रांतियां फैलाना कि इससे फर्टिलिटी में असर आ जाएगा हमारी बहनों में, ये अफवाहों को प्लीज मत मानिए। इसमें कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे कि आगे पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, और मैं पर्टिकुलरली गुजारिश करूंगा जो हमारी नर्सेज बहनें और आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो रह गई हैं, वो अब आगे आएं और इस काम को पूरा करने में मदद करें, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि पहले भी ये बात कही गई इस मंच से कि देखिए ये अब सिचुएशन ऐसी है कि महामारी की प्रकोप कंट्रोल में है, कम है। इसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम लागू हो रहा है, तेज गति से लागू है, और तेज गति इसमें लाई जाएगी। रोल आउट करने का इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या हो सकता है कि हम इस सिचुएशन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पैंडेमिक हम, और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा इस पैंडेमिक को हमें खत्म करना है, इसके असर को खत्म करना है, नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ना है। तो जो भी व्यक्ति चिन्हित होते हैं, प्लीज आप साथ में जुड़ के इस काम को पूरा करिए और इस महामारी से अपने देश को बचाएं पूरी तरह से। इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि सिर्फ फर्टिलिटी में असर आ जाएगा, विमेन में कोई और खराबियां आ जाएंगी, हार्मोन्स में खराबी आ जाएगी, एस्प्रिन मिल रही है किसी को मामूली डोज 75 मिलीग्राम, उसको नहीं लेना। ये प्लीज इससे हट के जो बताया गया है तरीके से वेबसाइट पे लिखा गया है कि डोज के बारे में, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, कहाँ कहाँ किस किस को दिया जा रहा है, उसको प्लीज अपनाइए। और एक पॉइंट और भी पिछले हफ्ते चला हुआ था कि कुछ रिकमेंडेशन आई थी कि कोविशील्ड जो है उसका डोज इंटरवल फर्क होना चाहिए। हमारी गाइडलाइन पर अभी जो है वो 4 to 6 वीक्स कहती है, जैसे मैंने अभी कहा। कुछ तरफ से ये बात आई है, गाइडेंस आई है कि ये पीरियड बढ़ सकता है। तो इसके बारे में मैं आपकी तरफ से सूचित करना चाहूंगा कि जो हमारी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन एनटेगी है, वो इस चीज को एग्जामिन करेंगे और उस चीज को देखेंगे डेटा के बेस के ऊपर, और जो रिकमेंडेशन इस देश के लिए होनी चाहिए उसको फॉलो किया जाएगा। वो एक साइंटिफिक इशू है, उसका जवाब हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट देंगे। बट वी आर वेरी क्लियर एट द मोमेंट कि जिस गाइडलाइन के बेस के ऊपर हमारे DCGI ने जिस डेटा के बेस के ऊपर रिकमेंडेशन दी है इस वैक्सीन को आगे बढ़ाने की, उसको आप अपनाइए, और वो आज की डेट में बिल्कुल वैलिड है। You were listening to Health Ministry's press conference on action taken preparedness and updates on COVID-19. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our website, newsonair.com.
You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com.